Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा थर्ड वीक ऑफ दिसंबर मंथ। हम डेली बेसिस पे फ्रेंड्स डेली के करंट अफेयर्स कवर करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको, वरना आप कैरियर्स क्लाउड नाम से आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी नोट्स, पीडीएफ्स, आपकी डेली क्विज, वो सब मिलेगा। सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में चारों चांद लगा देगा। चलिए स्टार्ट करें फिर अपना सेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक अभी रिपोर्ट रिलीज की गई। रिपोर्ट का नाम रहेगा कोल 2023 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2026। इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि जो इंडिया की कोल सेक्टर है उसकी जो डिमांड है वो कितने परसेंट बढ़ेगी हर साल बाय 2026, ताकि वो 1397 मिलियन टन्स तक पहुंच सके। तो 2026 तक जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इंडिया के कोल सेक्टर की वो है 3.5% की। राइट, मार्क करेंगे। यहीं पर अगर हम देखें जो ग्लोबल डिमांड रहेगी, पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल डिमांड रहेगी वो राइज करेगी, वो उसने राइज करा बाय 1.4% इन 2023, एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक जो ये डिमांड है इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबली हमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ग्लोबली। हम चाहते हैं कि हम ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन ना फैले, पॉल्यूट ना हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आ जाता है 3.5%। नेक्स्ट अगर आता है क्वेश्चन, द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। राइट, इन्होंने अभी सेंट लूसिया के साथ टाई अप करके एक इनके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर पूछा जा रहा है कि किस कंट्री को यहाँ पे पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन चूज किया गया बाय TIW, और ये छठी बार है कि इस कंट्री को यहाँ चूज किया गया टू हेल्प अदर कंट्रीज डेवलप देयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो है इंडिया। हमारे इंडिया को यहाँ पे चूज किया गया एज पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ पर इंडिया अपने टैक्स एक्सपर्ट्स को भेजेगा टू डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पर फिलहाल यहाँ कहाँ भेजेगा? सेंट लूसिया में, ताकि इनके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। राइट, 12 से 18 महीने का ये आपका प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे याद रखेंगे ये 7वीं बार है, राइट, कि TIW प्रोग्राम में इंडिया हेल्प कर रहा अपने टैक्स एक्सपर्ट्स को भेज रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन इंडियन ऑफिसर्स को अभी रिसेंटली गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो गोल्डन आउल से किनको सम्मानित किया गया? मेजर रोहित जो कि है इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा ऑफ इंडियन नेवी, विंग कमांडर S महाजन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है गोल्डन
आउल अवार्ड से फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोल्डन पेन से किसको सम्मानित किया जाता है, बताओ जरा। गोल्डन पेन से किसी भी यंग ऑफिसर को सम्मानित किया जाता है, राइट, जो बेसिकली गोल्डन पेन उन यंग ऑफिसर को सम्मानित किया जाता है या फिर स्टूडेंट ऑफिसर को सम्मानित किया जाता है जो बेस्ट रिसर्च पेपर सामने लाता है अमंग द 3 विंग्स, गोल्डन पेन। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली स्worn इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो 14th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं राजस्थान के, वो है भजन लाल शर्मा। ये किनको रिप्लेस करेंगे, इन्होंने रिप्लेस किया अशोक गहलोत को, जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ऑफ राजस्थान। कब से कब तक थे ये चीफ मिनिस्टर, 98 से लेके 2003 तक, फिर 2008 से लेके 2013 तक, और फिर 2018 से लेके 2023 तक। और अब भजन लाल शर्मा नए चीफ मिनिस्टर बन गए, 14th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं राजस्थान के। गवर्नर कौन है राजस्थान के, कलराज मिश्रा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें तो ज़रा बताओ, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये कहाँ सेटअप की जा रही है, तेलंगाना में सेटअप की जा रही है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 67th नेशनल स्कूल गेम्स, 67th नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पर हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली अटल हेल्थ फेयर, अटल हेल्थ फेयर हुआ, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हुआ कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक, फिर उस पहली एयरलाइन का नाम बताओ, इंडिया की पहली एयरलाइन जिन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स किए एक साल में। तो क्या नाम रहेगा एयरलाइन का, वो है इंडिगो। ठीक, फिर इसी के साथ साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक जनरेटिव एआई का स्टूडियो लॉन्च किया है बेंगलोर में, किसके द्वारा किया गया है, असेंचर के द्वारा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, पहला फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम ये हुआ बोधगया में, और किसके द्वारा कराया गया था, इनॉग्रेट किया गया, दलाई लामा जी के। नेक्स्ट, एज ऑफ दिसंबर डैश बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बॉलर इन द ICC रैंकिंग्स। तो कौन है, वो है रवि बिश्नोई, राइट, इंडियन प्लेयर है, करेक्ट। ये वर्ल्ड के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए ऑफ ICC। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू COP28 जो कि है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 28th एडिशन था, कहां पर हुआ था, दुबई UAE में हुआ था। इसमें से कौन सा ठीक है आपको ये बताना, कौन सा गलत है आपको ये बताना है। सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 5, बाकी सभी सही हैं। PM मोदी ने अटेंड किया COP28 प्रेसिडेंसी सेशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस, दुबई UAE में हुआ, बिल्कुल सही। PM मोदी अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान, इन्होंने को होस्ट किया इवेंट एट द ग्रीन ऑन द टॉपिक ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम COP28 दुबई में, बिल्कुल सही। फिर PM मोदी ने लॉन्च किया लीड IT 2.0 इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द को डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। देन IRADA ने लॉन्च किया अपना रिटेल डिवीजन, बिल्कुल सही। 5वां ऑप्शन कह रहा है कि रिन्यू एनर्जी ग्लोबल, इन्होंने एक MOU साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ $5.3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट किया जा सके। तो क्या ये ठीक है, नहीं, वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये $5.3 बिलियन का अग्रीमेंट साइन किया गया। अब सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज अस्त्रा शक्ति 2023 एज ऑफ दिसंबर 2023। अस्त्रा शक्ति एक्सरसाइज की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये कंडक्ट कराई गई सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन में कराई गई। कहां पर है ये सूर्यलंका, आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने शोकेस किया आकाश वेपन सिस्टम, जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहेगा, एंड इसने 4 टारगेट्स को एक ही साथ एक ही फायरिंग में खत्म कर दिया था, तो बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट किया गया था, एंड 2 से 2.5 मैक के थ्रेट्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है इजीली। तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच टीम हैज वन विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल 2023-24 बाय डिफीटिंग राजस्थान मेंस क्रिकेट टीम इन द फाइनल्स इन दिसंबर। तो हरियाणा ने यहां पर विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। 21वां एडिशन था ये विजय हजारे ट्रॉफी का, 23 नवंबर से 16 दिसंबर तक था। 135 मैच यहाँ पर हमें खेले गए, एंड ये पहली बार हुआ ऐसा कि हरियाणा ने
विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। एंड किसको हराया इन्होंने फाइनल्स में? राजस्थान को। Next, which company has recently signed MOU with IIT Roorkee and University of Birmingham to establish a collaborative partnership in the field of skill development for railway signaling and development of digital twin for railway operation and maintenance respectively? तो किसने यहाँ पे टाई अप किया? रुड़की एंड यूनिवर्सिटी ऑफ IIT रुड़की एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम के साथ। क्या नाम रहेगा उस कंपनी का? वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कुछ और करंट अफेयर्स देखें तो जैसे सांस, ये कैंपेन था, मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड बेसिकली ये जो कैंपेन था ना, न्यूमोनिया को के खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर आता है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए। एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा? पाट मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट, रिपब्लिक डे पर किसको अपॉइंट किया गया है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। ठीक, फिर इसके अलावा अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं थर्ड टाइम के लिए? अब्दे फतेह एल सीसी, राइट। फिर ईडी ऑफ ICICI बैंक कौन अपॉइंट किए गए हैं? संदीप बत्रा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन टू आर्कटिक, राइट, टू एक्सपेंड इंडिया साइंटिफिक एक्टिविटीज टू द अदर क्रिटिकल एंड कोर आर्टिक रेल्म्स। मतलब वहां पर अपना इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। 4 साइंटिस्ट रहेंगे यहाँ पर जो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मिशन के अंडर या किस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको अप्रूव करा? तो मिशन क्या रहेगा? वो कौन सी स्कीम है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च के अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ये एक्सपीडिशन को अप्रूव किया गया, जो कि इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन रहेगा टू आर्कटिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 18th सेशन ऑफ यूनेस्कोस इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हेल्ड इन दिसंबर? इसमें से ऑप्शन ABC देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक नहीं है। ऑप्शन B और ऑप्शन C ठीक है, A गलत है। A क्या कह रहा है कि जो 18th सेशन हुआ था ना इस कमेटी का, यूनेस्को की इंटरगवर्नमेंटल कमेटी का फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ये हुआ कहाँ पर था? ये पराग में नहीं हुआ था, ये रिपब्लिक ऑफ बोस्टवाना में हुआ था, ऑफ बोस्टवाना, 5 से 8 दिसंबर के बीच में। बिल्कुल सही, अब ठीक ऑप्शन। बी कह रहा है सेशन इंस्क्राइब 52 न्यू कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंडिया का जो गरबा डांस है टू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। बिल्कुल सही, गरबा डांस बिकेम 15th ICH एलिमेंट फ्रॉम इंडिया टू जॉइन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, और गरबा डांस है कहाँ का ये पूछा जाए तो गुजरात का। कुछ और देखें तो वो इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट कौन है जिनको क्राउन किया गया मिस इंडिया USA 2023? वो है रिजुल मैनी। ठीक है, फिर वो कौन सी फिल्म है जिसको KIFF फेस्टिवल के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। नेक्स्ट, किसको अभी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नितिन मोहन लाल को, राइट। देन किसको अभी फिक्की वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी? वो रहेगा NTPC कांति। ठीक, फिर लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक, फिर इसके अलावा जरा बताओ विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? हरियाणा के द्वारा पहली बार जीती गई है। देन MRF फॉर्मूला 2000 क्राउन किन्होंने जीता? वो है संदीप कुमार ने। मोस्ट एक्सपेंसिव IPL प्लेयर कौन रहा है इस ऑक्शन के दौरान, IPL ऑक्शन के दौरान? मिशेल स्टार्क। ठीक है, और सब जूनियर स्नूकर टाइटल किन्होंने जीत लिया? नताशा चेतन ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर, डैश कंट्री हैज टॉप्ड द रेमिटेंस चार्ट with an estimated inward remittance flow of $125 billion in 2023। तो सबसे पहले याद रखो जो रेमिटेंस होती है ना, रेमिटेंस होता है पैसे का आना जाना। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब दूसरी कंट्री से पैसा इंडिया में आ रहा है, और आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया से पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है।
ठीक है, तो इनवर्ड रेमिटेंस में अभी टॉप करने वाली कंट्री कौन बन गई है, वो है हमारी इंडिया विद अ रिकॉर्ड $125 बिलियन। मतलब इतना पैसा बाहर के लोगों ने इंडिया में भेजा, राइट। तो ऑप्शन 5 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया, कितने अमाउंट के लिए, फॉर जैपनीज येन लोन टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर को। तो कितने अमाउंट का था, 37 बिलियन जैपनीज येन का ये लोन अग्रीमेंट था, राइट। और ऑलमोस्ट ये कन्वर्ट करें तो $250 मिलियन का ये लोन अग्रीमेंट था, ताकि दिल्ली मेरठ का जो RRTS सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके, जिससे कनेक्टिविटी और बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो वो रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने कोलैबोरेट किया IOCL के साथ, ताकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, जिसका नाम रहेगा इंडिया ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड, एंड ये रुपए से पावर्ड रहेगा। Next, which of the following points are correct with respect to the first edition of Hurun India Top 100 Under 30 list released in December? इसमें से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। कैफल्या वोरा एंड आदित्य पलीचा, ये को फाउंडर्स हैं जेप्टो के, जो कि एक ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, एंड दे वर द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑन दिस लिस्ट। बी कह रहा है देवांशी केजरीवाल, ये को फाउंडर हैं एंड चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं ऑफ स्किलमेटिक्स, जो कि यंगेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर रहेंगी इस लिस्ट पे, बिल्कुल सही। सास होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये मर्ज करके आया एज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द लिस्ट विद 19 एंटरप्रेन्योर्स। इसके अलावा हो जाता है IaaS, PaaS, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS क्या है, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, राइट। नेक्स्ट, अब्दुल फतेह अल सीसी, ये अभी रिलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ, ये कहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, तो ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट रिलेक्ट किए गए हैं फॉर द 3rd टर्म। इसी के अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन पूछूं फ्रेंड्स आपसे, जैसे बताओ 18 दिसंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स डे। 18 दिसंबर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 19 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं गोवा लिबरेशन डे। 21 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, और ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है अभी 2023 में। फिर 22 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, S रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो भी न्यू दिल्ली में हुए थे। पहला एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन भी कह सकते हैं। इससे देखा जाए तो ऑप्शन ABC कौन सा ठीक रहेगा, जरा बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन B एंड C ठीक है, A गलत है। A क्यों गलत है, क्योंकि यूपी ने टॉप नहीं किया यहाँ पर, बल्कि हरियाणा ने मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किया है, जिसमें 105 मेडल्स आए, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज। फिर शीतल देवी, ये जम्मू कश्मीर से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द कंपाउंड आर्चरी इवेंट। फिर भाविना पटेल गुजरात से हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता इन द टेबल टेनिस इवेंट। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देखते होंगे नीचे आता है एकदम स्कैन का बटन, जिससे आप पेमेंट करते हैं, तो उसके जस्ट साइड में राइट में आपको दिखेगा ONDC लिखा हुआ। ये आपका उस प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, उस पेज पे चला जाता है जहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पर बिक रहे होते हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं। एंड उन्हीं जो प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, उन MSMEs को, उन बिजनेसेस को, उन स्मॉल बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए यहाँ पर अभी मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, ये हेल्प करेंगे इनको। एंड नॉट जस्ट मेटा अभी कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी आप देखेंगे मेटा का जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वो अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को ग्रो कर रहे हैं, एंड जो MSMEs हैं अक्रॉस इंडिया उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं, ताकि वो उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके ग्रो कर सकें। इनके द्वारा व्हाट्सएप बिजनेस भी लॉन्च किया गया, और हम जानते हैं व्हाट्सएप भी फेसबुक के द्वारा ही एक्वायर किया हुआ प्लेटफॉर्म है, नहीं पता था तो जान लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट लॉन्च मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन दिसंबर। इसमें से अगर ऑप्शन ABC देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक रहेगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेंगे। अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया DG ELV, जो कि एक ऑथराइज्ड एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट रहेगा ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट। ये लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही। ये जो DG ELV है, डेवलप किया गया है मेटा मटेरियल सर्कुलर मार्केट्स के द्वारा एंड ऑथराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट, which Indian company has recently joined the World Economic Forum's Global Lighthouse Network? This Lighthouse Network is a community of global
manufacturers. They come together and decide which way to go forward, which new technology to incorporate in their manufacturing process, right? So which Indian company recently joined this World Economic Forum's Global Lighthouse Network as the factory lighthouse? Which is it? It is ACG Associated Capsules. नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया फर्स्ट ऑफ 6 न्यू डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट. ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट अगर आपको याद हो, ये श्रीलंका को भी गिफ्ट दिया गया था बाय इंडियन नेवी, ताकि श्रीलंका की जो सेफ्टी है, जो सर्वेलेंस है, उसको एनहांस करने के लिए पहला एडिशन दिया गया था. जो पहला एयरक्राफ्ट दिया गया था वो वापस आ गया था इंडिया के पास फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और इंडिया ने फिर सेकेंड एक दूसरा डॉर्नियर 222 एयरक्राफ्ट यहाँ पे गिफ्ट दिया था टू श्रीलंकन नेवी. तो पूछा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फर्स्ट ऑफ द 6 न्यू डॉर्नियर 222 एयरक्राफ्ट, ये 19 सीटर एयरक्राफ्ट है. पूछा जा रहा है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया. तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया. नेक्स्ट, और इसका बजट कितना रहेगा? 667 करोड़ रुपीज़ का इसका बजट रहेगा. इससे इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया. नेक्स्ट, नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज़ पार्टनर्ड विद ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ अभी किस यूनिवर्सिटी ने पार्टनर किया ताकि एक UTIKS पोर्टल को लॉन्च किया जा सके. ये क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, UTIKS पोर्टल. तो कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी? वो है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. इन्होंने ICCR के साथ मिलकर यहाँ पे ये UTIKS पोर्टल को लॉन्च करा. ठीक, और ये UTIKS पोर्टल बेसिकली क्या काम करेगा, इसका क्या किस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? बेसिकली इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए, राइट, ताकि वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस है ग्लोबली इंडिया के कल्चर को, इंडिया के रिच सिविलाइजेशन को इन अ लर्नर फ्रेंडली मैनर उनके सामने ले जाने के लिए इसको लॉन्च किया गया. नेक्स्ट, नेम द स्पेस एजेंसी कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स ऑफ क्यूपरसैट 1 एंड क्यूपरसैट 2 बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस Atlas 5 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर प्रोजेक्ट क्यूपर सैटेलाइट सिस्टम. तो अमेजॉन कॉर्पोरेशन इनके द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे ये 2 फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्यूपरसैट 1 एंड क्यूपरसैट 2 इनको यहाँ पे लॉन्च किया गया. और किसकी मदद से? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस Atlas 5 रॉकेट की मदद से. कहाँ से? केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा USA में है, वहाँ से. Which bank has recently entered into a corporate agency agreement with HDFC Life to offer life insurance product to their customers? It is Karur Vasai Bank, right? Karur Vasai Bank entered into a corporate agency agreement with HDFC Life to offer life insurance products to their customers. Correct? Next, and there is a target of IRDAI to provide insurance to all by 2047. Next, name the life insurance that has recently entered into a bancassurance partnership with IDFC First Bank Limited to offer insurance solutions to the bank's customers. It is Aditya Birla Sun Life Insurance. Right? They have recently entered into a bancassurance partnership with IDFC First Bank Limited to offer insurance solutions to the bank's customers. Next, which of the following personalities from India have recently won International Hockey Federation's Men's Player of the Year and the FIH Women's Goalkeeper of the Year award respectively at the 2023 FIH Annual Hockey Star Awards? So if we talk about the men's, FIH Player of the Year award was awarded to Hardik Singh and Women's Goalkeeper of the Year award was awarded to Savita Punia. So right option here becomes option 2. Next, in December, Sandeep Batra was reappointed as the Executive Director of Dash Bank. So remember, Sandeep Batra was appointed as the Executive Director of ICICI Bank. Next, Ministry of Home Affairs has recently formed a committee जो कि हेड की जाएगी CRPF के द्वारा. राइट, CRPF के डायरेक्टर जनरल के द्वारा. क्या नाम रहेगा उनका? करेक्ट, जो कि पार्लियामेंट अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, पार्लियामेंट में 2 लोग आ गए थे और गैस के गोले भी उन्होंने फेंक दिए थे. तो उस सिक्योरिटी ब्रीच को एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई जो कि हेड की जाएगी बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF जो है अनीश दयाल सिंह. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. कितने अमाउंट का? मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल. और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 NG OPVs को प्रोक्योर किया जाएगा. जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के लिए के साथ, वो कितने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? 1614.89 करोड़ रुपीस का. नेक्स्ट है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी. इन्होंने एक नेशनल जियोसाइंस डाटा रेपोजिटरी NGDR पोर्टल
को अभी यहाँ पे लॉन्च किया एंड एक रोड शो भी कराया क्रिटिकल मिनरल्स का इन न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे आर की इनडायरेक्टली फुल फॉर्म ही पूछी गई थी एनजीडीआर की, तो आर क्या रहेगा, रेपोजिटरी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो एनजीडीआर है ना, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डज नॉट रिसीव द आरबीआई's अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर इन दिसंबर 2023। तो ये चारों, रेजर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड नेहा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन चारों को यहाँ पे अभी पेमेंट एग्रीगेटर का भी अप्रूवल मिला आरबीआई से, बट इजी बस प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे ये अप्रूवल नहीं मिला है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया जिनको भी रिसेंटली ऑनर किया गया छठे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से फॉर द बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ये सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स इस बुक के लिए छठे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से किनको सम्मानित किया गया, और वो इंडियन है। क्या नाम रहेगा उनका, वो है सुकृता पॉल कुमार, ठीक है। और इनको यहाँ पे $10,000 का कैश प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट, इसरो ने अभी 9वां एडिशन ऑफ द लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया फॉर देयर मिशन डैश। ये लीफ एरिक्सन मिशन है कि जो एक आउटस्टैंडिंग मिशन होता है, राइट, जिसको एक क्यूरोसिटी जगती है एंड काफी कुछ एक्सप्लोर करने को भी मिलता है, उस लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 9वां एडिशन था, इसरो के द्वारा दिया जाता है। चंद्रयान 3 को यहाँ पे इस अवार्ड से भी सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द 17th एमिर ऑफ कुवैत। तो 17वें एमिर कौन बने हैं कुवैत के, वो है शेख महशाल अल अहमद अल जबैर अल सबा। तो चौथा ये आंसर यहाँ पर आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट, पद्मा भूषण अवॉर्डी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ये एक इंडियन वीमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं एंड फॉर्मर चेयर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया दिसंबर में। इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। तो किस साल में इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था, तो 2007 में इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था, और किस फील्ड में, सोशल वर्क कैटेगरी में इनको पद्मा भूषण दिया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा, तो याद रखेंगे दिसंबर में 2023 में पहली बार आपका वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, यूएन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया जाएगा 21 दिसंबर को। नेक्स्ट, नासा का एक मिशन है टेम्पो। टेम्पो बेसिकली क्या काम करता है, एयर पॉल्यूशन को मेजर करता है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आर्ली बेसिस पे, ठीक है। टेम्पो की फुल फॉर्म पूछी गई आपसे, क्या रहेगी, तो टेम्पो क्या है, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग पॉल्यूशन। आई रिपीट, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ये टेम्पो रहेगा। तो राइट ऑप्शन टी की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या रहेगा, ट्रोपोस्फेरिक। नेक्स्ट, उद्यम सखी पोर्टल, यह भी डेवलप किया गया इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर आती है, ठीक है। उद्यम सखी पोर्टल जो कि IDEMI के द्वारा डेवलप किया गया था, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 5th एडिशन ऑफ लीड्स सर्वे रिपोर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इनके मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च की गई। अगर यहाँ पे देखें तो सारे ऑप्शन ABC तीनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। 13 स्टेट्स, जो जिसमें 11 स्टेट्स एंड 2 यूटीज आ जाती हैं, इनको कैटेगराइज किया अंडर द अचीवर्स इन द लीड्स सर्वे रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनको कैटेगराइज किया एज अचीवर्स अमंग द कोस्टल स्टेट्स। एंड हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना एंड यूपी, इनको कैटेगराइज किया एज अचीवर्स अमंग द लैंड लॉक स्टेट्स इन दिस 5th एडिशन ऑफ लीड्स सर्वे रिपोर्ट। नेक्स्ट, यूएन ने डिक्लेयर किया 2024 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिट्स, राइट। कैमल्स ही समझ लीजिए इनको एक तरीके से, कैमलिट्स इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, राइट। एंड यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ईयर 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिट्स डिक्लेयर किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द, या फिर हम बोलें 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था, राइट। तो इनके इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इनकी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिट्स डिक्लेयर किया गया 2024 को। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अभी एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हुई थी चक्रावत 2023। ये इंडियन नेवी के साथ इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी चक्रावत। पूछा जा रहा है ये चक्रावत एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, लोकेशन पूछी जा रही है आपसे। देखा आ गई ना लोकेशन, तो ये गोवा में हुई थी, सबसे पहले ये याद रखेंगे। फिर गोवा में ही 37वें नेशनल गेम्स हुए थे, जहाँ पर महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल सिक्योर किए थे, फिर ये याद रखेंगे।
राइट। तो गोवा में हुई थी ये चक्रावत, इंडियन नेवी के द्वारा कराई गई थी, 9 से 11 अक्टूबर तक हुई थी, गोवा में हुई थी। ठीक, फिर याद रखेंगे ये जो HADR एक्सरसाइज है सागर इनिशिएटिव के अंडर हुई थी। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव। तो कहां पर? गोवा में। नेक्स्ट, देन नेम द 2-डे कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई अभी, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। क्या नाम रहेगा इस कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज का? तो ये है ईस्ट कोस्ट सागर कवच, राइट। ये एक्सरसाइज है इन लोकेशन पे हुई थी। यहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, फिशरीज, मरीन पुलिस, राइट। इन सब के द्वारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखी गई। नेक्स्ट, नेम द सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो अभी कंडक्ट कराई गई इंडियन नेवी के द्वारा इन आंध्र प्रदेश। काकिनिदा आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज कराई गई, क्या नाम रहेगा? प्रस्थान, राइट। सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, इंडियन नेवी के द्वारा कराई गई, एंड इंडियन नेवी में भी अगर बात करें ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ये एक्सरसाइज कराई गई थी, प्रस्थान, आंध्र प्रदेश में। करेक्ट, मार्क करेंगे। इसमें भी 2500 से भी ज़्यादा पर्सन का यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिला, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट, मरीन पुलिस एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे 2 इंडियन नेवल शिप का याद रखेंगे, INS कोरा एंड INS तिहायु। इन दोनों के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है एक चीज़ और यहाँ पर, अभी इंडियन नेवी फरवरी में 2024 में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगी मिलान के नाम से, जहाँ पे हम 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन देखेंगे उनकी नेवी का इन दिस एक्सरसाइज, और ये अरेबियन सी में होगी। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। ये एक 2 वीक इंडो मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी। पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट कराया गया, तो याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुई, और कहाँ पर हुई लोकेशन पूछा जाए तो मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और इससे जो पुराना एडिशन था 2022 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो आपका मलेशिया में कंडक्ट कराया गया था। एंड 2012 से हर साल ये एक्सरसाइज इन दोनों कंट्रीज के बीच में होती आ रही है, हरिमऊ शक्ति। जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, और ये जो साइन किया गया ना बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट के लिए इंडिया में हम 2 चीज़ों पे यहाँ पे हेल्प करेंगे, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्रो करने के लिए, एंड दूसरा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। कितना अमाउंट है? 4,15,301 मिलियन येन। इसमें से 400,000 मिलियन येन जो होगा वो आपका यूज़ किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद के 500 किलोमीटर लॉन्ग रेल इकोसिस्टम को, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंड बाकी 15,301 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने ग्रांट किया 1 टाइम एग्जाम्पशन ऑफ LIC टू अचीव डैश मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विद इन 10 ईयर्स। तो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने का यहाँ पे 1 टाइम एग्जाम्पशन मिला LIC को। नेक्स्ट, which of the following are correct with respect to यूनेस्को's हेरिटेज अवार्ड 2023 announced in December 2023? इसमें से देखें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही रहेगा, सी यहाँ पर गलत है। ए कह रहा है यूनेस्कोस 2023 के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन हुए, जिसमें से अवार्डेड टू टोटल 12 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 6 इंडिया के थे, 5 चाइना, 1 नेपाल का। दूसरा है रामबाग गेट एंड रामपाट्स इन पंजाब, इन्होंने अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द हाईएस्ट ऑनर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड को जीता। तीसरा कह रहा है चर्च ऑफ इफेनी इन हरियाणा, इन्होंने 2 अवार्ड जीते, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। तो नहीं, चर्च ऑफ इफेनी नहीं रहेगा ये, बल्कि क्या है ये? कर्णिका मंडपम। कहाँ पर है? केरला में, कर्णिका मंडपम, और ये कहाँ पर रहेगा? केरला में। इसको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इट्स 2-year टर्म। फॉलोइंग दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने नॉमिनेट किया कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो 31 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें आपके फाउंडर भी रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इन्वेस्टर्स की तरफ से, आपके इंक्यूबेटर्स की तरफ से एंड एक्सेलरेटर्स की तरफ से। इसमें आप देखेंगे कुणाल बैल जो को फाउंडर है स्नैपडील के वो हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ इन्फो एज नितिन कामत फाउंडर ऑफ सीओ ज़रोधा ये भी रहेंगे।
Next, name the personality who has recently been appointed as the first ever global brand ambassador of Bisleri International Private Limited. Bisleri क्या है? ये वाटर ब्रांड है ग्लोबल, राइट? तो दीपिका पादुकोण को अभी यहाँ पर इनका बिस्लरी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है. Next, when was the National Mathematics Day observed across India to commemorate birth anniversary of the Indian mathematician S. Ramanujan? तो S. रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 22 दिसंबर को. और इस साल 2023 में हमने उनकी 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी, राइट? तो 22 दिसंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे इन द बर्थ एंड इन द मेमोरी ऑफ एस रामानुजन. करेक्ट. पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था नेशनल मैथमेटिक्स डे? 2012 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन मसूर दाल जो लेंटिस है, कब तक इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है? तो याद रखेंगे 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक जो मसूर दाल होती है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसका एग्जाम्पशन लगा दिया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एम्पावर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशंस. सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशंस को एम्पावर करने के लिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ टाई अप किया? जियो मार्ट के साथ. यहाँ पर इन आर्टिशंस को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कैसे अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकें, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकें एंड कैसे उसको डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ऑडियंस को बेच सकें. नेक्स्ट, किस बैंक ने और ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव किया लोन ऑफ $300 मिलियन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को ग्रो कर सकें? तो याद रखेंगे यहाँ पर ये जो अमाउंट है $300 मिलियन का किसके द्वारा दिया गया है? ये लोन ये दिया गया है आपका, बताइए किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट? $300 मिलियन का लोन है, ठीक, वर्ल्ड बैंक ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया ताकि तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे ग्रो करा जा सके. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं. इन्होंने अभी एक नया ऑफिशियल लोगो, जर्सी एंड थीम सॉन्ग लॉन्च किया है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होंगे. पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो क्या रहेगा मैस्कॉट? वो है वीरा मंगाई रहेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट है. इन दिसंबर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स पास्ट अवे. तो कौन है वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनको 1987 में नोबेल प्राइज मिला था, जिनका भी रिसेंट निधन हो गया? तो वह रॉबर्ट मैटॉन सोलो. करेक्ट, इनका निधन हो गया है. 1987 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, मार्क करेंगे. नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जो कि 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. 1979 से लेके 1980 तक ये यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के, एंड ये 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे. पूछा जा रहा है नेशनल फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है या फिर किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड 2023 में हमने इनकी 121वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी थी. पहली बार किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया गया था? किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर 2001 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बीन वर्किंग फॉर द फंड फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स? तो कौन से बैंक वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये फंड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए? HDFC बैंक, SBI एंड ICICI बैंक. ये तीनों बैंक यहाँ पे वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि एक फंड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए. ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ये था आपका 3rd वीक ऑफ दिसंबर. सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा सेशन लगा. इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट मैं ला सकूं. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.